وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ مجھے ان مشکلات کا ادراک ہے جن کا تنخواہ دار طبقے سمیت مجموعی طور پر عوام کو سامنا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے اپنے ٹویٹر پر جاری بیان میں کہا کہ ملک میں مہنگائی اور عام عوام کی مشکلات کے حوالے سے مجھے ان مشکلات کا ادراک ہے جن کا تنخواہ دار طبقے سمیت مجموعی طور پر عوام کو سامنا ہے، چنانچہ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے میری حکومت کابینہ کے اجلاس میں عوام کے لیے بنیادی غذائی اجناس کی قیمتوں میں کمی کی خاطر مختلف اقدامات کا اعلان کرے گی۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ اسی اثنا میں تمام متعلقہ حکومتی ادارے آٹے اور چینی کی قیمتوں میں اضافے کے اسباب کی جامع تحقیقات کا آغاز کر چکے ہیں۔ قوم اطمینان رکھے کہ ذمہ داروں کا بھرپور محاسبہ کیا جائے گا اور انہیں قرار واقعی سزا دی جائے گی۔ واضح رہے کہ گزشتہ روز وزیر اعظم کی زیر صدارت ہونے والے اجلاس میں کھانے پینے کی اشیاء کی سستے نرخ و فراہمی پر غور اور عوامی ریلیف کے حوالے سے آٹا، گھی، چینی، چاول اور دالوں کی قیمتوں میں کمی کا فیصلہ کیا گیا تھا۔ وزیر اعظم نے دوران اجلاس کہا تھا کہ عام آدمی کے کچن میں بنیادی اشیاء ہر حال میں پہنچائیں۔ جن گھرانوں میں خریدنے کی سکت نہیں انہیں حکومت راشن دے گی۔ احساس پروگرام کے تحت انتہائی غریب افراد کو راشن دیں گے۔ اگر غریب کا احساس نہیں کر سکتے تو حکومت میں رہنے کا حق نہیں۔ ہم غریب کی بہتری کے لیے ہی حکومت میں آئے ہیں۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ 2 غیر ملکی کوہ پیماؤں کو ریسکیو کر لیا گیا ہے۔ ISPR کے مطابق امریکہ فن لینڈ کے کوہ پیما دنیا کی 12ویں بلند ترین پہاڑ براڈ پیک سر کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ اس دوران وہ بیمار ہو گئے تھے، جس پر پاک فوج نے ان دونوں کو بلتورو گلیشیئر سے ریسکیو کیا ہے۔ واضح رہے کہ پاک فوج کی جانب سے اس ریسکیو آپریشن میں آرمی ایوی ایشن کے پائلٹس نے حصہ لیا۔ ریسکیو کیے گئے کوہ پیماؤں میں ایک خاتون اور ایک مرد شامل ہے۔ مرد کوہ پیما ڈونلڈ ایلن پووی کا تعلق امریکہ، جبکہ خاتون کوہ پیما لوٹا ہینریکا کا تعلق فن لینڈ سے ہے۔ جمعیت علماء اسلام فے کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے حکومت کے خلاف احتجاجی تحریک کے اگلے مرحلے کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ حکومت تو گھر جا چکی ہے، اس کی کوئی رٹ نہیں ہے۔ لاہور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے جمعیت علماء اسلام فے کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ بڑی جماعتوں کی بعض پالیسیوں سے اپوزیشن منقسم ہوئی۔ اپوزیشن منقسم ہوتی ہے تو اس کا فائدہ حکومت اٹھاتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اپوزیشن سے ابھی جلسوں اور کنونشن کے لیے رابطہ نہیں کیا۔ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی آنا چاہیں تو خوش آمدید کہیں گے، لیکن ہم خود انہیں دعوت نہیں دیں گے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بڑی جماعتوں کی بعض پالیسیوں کی وجہ سے اپوزیشن منقسم ہوئی ہے، اور جب اپوزیشن منقسم ہوتی ہے تو اس کا فائدہ حکومت اٹھاتی ہے، لیکن تاہم ہمارے مد نظر یہ بات ہے کہ کس طرح عوام کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کر کے اس کمی کو پورا کیا جائے۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ ناکام حکومت کی وجہ سے ملک بحران کا شکار ہے۔ حکومت نے عوام کا جینا دو بھر کر دیا ہے۔ بجلی، گیس اور پیٹرول سمیت ہر چیز کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں۔ عام آدمی بجلی کے بلوں اور مہنگائی کی چکی میں پس چکا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہماری کوشش ہے کہ عوام کا متحد کر کے مایوسی کو امید میں تبدیل کیا جائے۔ عوام کے شانہ بشانہ لائق اور قابل حکومت کے قیام کے لیے جد و جہد کی جائے۔ ملک اس وقت معاشی بحران کا شکار ہے۔ مہنگائی نے عام آدمی کی زندگی کا حق چھین لیا ہے۔ ٹیکسز کی بھرمار ہے۔ بجلی، گیس، پیٹرول ہر سطح پر کئی گنا قیمتیں بڑھ رہی ہیں۔ غریب آدمی بازار سے راشن اور سبزی خریدنے کے قابل نہیں رہا ہے۔ لوگ خودکشیاں کرنے پہ مجبور، اپنے بچوں کو بیچنے پہ مجبور ہو رہے ہیں۔ ایسے حالات میں ہم اپنے عوام کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہو کر ایک
लायक और बासलाहियत हुकूमत के क़याम के लिए और अवाम के हकीकी नुमाइंदा हुकूमत के क़याम के लिए जद्दोजहद को जारी रखे हुए हैं। JUIFA के सरबराह ने कहा कि हमारी तहरीक से हुकूमत की दीवारों में दरारें पैदा हुई। अब 23 फरवरी को कराची जबकि 1 मार्च को इस्लामाबाद में मार्च किया जाएगा। 23 फरवरी को कराची में एक बड़ा जलसा आम होगा। 23 फरवरी और 1 मार्च को इस्लामाबाद में तमाम शोबाए ज़िंदगी की नुमाइंदगान पर मुश्तमिल एक कौमी कन्वेंशन का इनेकाद होगा ताकि उस मौक़िफ़ को मुनज़्ज़म रखा जा सके, अवाम की सफ़ों को मुनज़्ज़म रखा जा सके और नाजायज़ हुक्मरानों के ख़िलाफ़ इस तहरीक को आगे बढ़ाया जा सके। वफाकी वजीर असद उमर ने कहा है कि कराची के अवाम के लिए K4 का मंसूबा इंतहाई अहम है। K4 मंसूबे से कैंजर झील से कराची के लिए उसमें पानी लाया जाएगा। तरजीही बुनियादों पर K4 के मजीद अखराजात में 50% वफाक से दिलाएंगे। लियारी में फलाही इदारे की जानिब से तामीर करदा अस्पताल की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए वफाकी वजीर असद उमर ने कहा कि आज मैं लियारी में इलेक्शन के बाद पहली बार आया हूँ। हम सियासी जिद्दोजहद का हिस्सा हैं, सियासी मुकाबला भी करते हैं। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला सिंध से कहा है कि आवाम की तरक्की और फलाह के काम में कोई सियासत नहीं, हम हर हुक्मरान के साथ मिलकर पाकिस्तान के अवाम की खिदमत के लिए तैयार हैं। जहाँ तक अवाम की तरक्की, उनके तरक्याती मंसूबे, उनकी फलाह का काम है, इसके अंदर कोई सियासत नहीं है। चाहे वो वोटर तहरीक इंसाफ का हो, वो पीपल्स पार्टी का हो, वो मुस्लिम लीग का हो या कोई ऐसी हुकूमत हो जो इनमें से किसी भी एक जमात के साथ ताल्लुक रखती हो, अगर वो पाकिस्तान के अवाम के लिए काम करने के लिए तैयार होंगे तो हम हर हुकूमत के साथ मिलकर पाकिस्तान के अवाम की खिदमत करने के लिए तैयार हैं। असद उमर ने कहा कि कराची के अवाम के लिए K4 का मंसूबा इंतहाई अहम है। K4 मंसूबे पर सिंध काबीना की मंजूरी के बाद जल्द काम शुरू करवाएंगे। K4 मंसूबे से कैंजर झील से कराची के लिए उसमें पानी लाया जाएगा। असद उमर ने यकीन दहानी कराते हुए कहा कि तरजीही बुनियाद पर K4 के मजीद अखराजात में 50% वफाक से दिलाएंगे। कराची के अवाम के लिए इंतहाई अहम मंसूबा है, वो K4 का मंसूबा है जिससे 26 करोड़ गैलन पानी कराची लेकर आना है हमने किंजर लेक से। उस मंसूबे के लिए दोबारा इंजीनियरिंग डिजाइन का काम करवाया गया था, रिपोर्ट मुकम्मल हो गई, सिंध की सूबाई हुकूमत को पेश कर दी गई है। जहां तक मेरी मालूमात है काबीना के पास वो ज़ेर गौर है। जैसे ही सिंध की काबीना उस रिपोर्ट को मंजूर करके वफाक भिजवाएगी, ये मेरा सिंध की हुकूमत के साथ भी और उससे ज्यादा अहम कराची के अवाम के साथ वादा है, इंशाअल्लाह ताला तरजीही बुनियाद के ऊपर उस K4 के मंसूबे के जो मजीद अखराजात हैं, जो तकरीबन अंदाजा है कि 31 अरब रुपए ज्यादा चाहिए होंगे, 50% हिस्सा उसका वफाक से दिलवाएंगे और जल्द से जल्द इस मंसूबे के ऊपर काम शुरू करवाएंगे। उन्होंने कहा कि आवाम के लिए काम करने वालों के साथ काम करेंगे। आइंदा बजट में लियारी के लिए फुटबॉल स्टेडियम का बजट मंजूर कराएंगे। उन्होंने कहा कि फहमीदा मिर्जा से खास दरख्वास्त की है कि लियारी के लिए मंसूबे की मंजूरी दें। लियारी के होनहार नौजवानों को सहूलियात देने की जरूरत है। हुनरमंद नौजवान प्रोग्राम पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रोग्राम है। लियारी के अवाम को हुकूमती प्रोग्राम्स में पूरा हक मिलेगा। मैं खुसूसी तौर पे मेरी एक हफ्ता 10 दिन पहले मुलाकात थी फहमीदा मिर्जा साहिबा के साथ, जो IPC की वजीर हैं और स्पोर्ट्स उनकी मिनिस्ट्री के नीचे आता है, और मैंने उनसे दरख्वास्त की थी कि खास तौर पे लियारी के लिए नौजवानों के खेलों के लिए कोई ना कोई मंसूबा हमें जरूर दें ताकि हम अगले साल के बजट के अंदर शामिल कर सकें। इतना माशाल्लाह होनहार नौजवान है लियारी का, फुटबॉल हो, बॉक्सिंग हो, अगर हम उसको सहूलत देंगे इंशाअल्लाह ताला अपना भी नाम रोशन करेंगे, पाकिस्तान का नाम भी रोशन करेंगे। वफाकी वजीर ने कहा कि तहरीक इंसाफ ने लियारी में भरपूर तरीके से इंतखाब जीता। आम आदमी ने लियारी में बड़े बड़े बुर्ज गिरा दिए। लियारी तब्दीली के लिए वोट तब देगा जब चेहरा भी तब्दीली वाला नजर आए। जब इलेक्शन के वक्त करीब आ रहा था तो बड़ी एक तहरीक इंसाफ के अंदर और बहुत बड़े बड़े लीडर थे जो हमें कहते थे कि कोई बड़ी सियासी शख्सियत को शमूलियत कराई जाए
जिसका बहुत बड़ा नाम हो और वही लियारी के अंदर मुकाबला कर सकता है। और हमारा मानना ये था कि लियारी तब्दीली के लिए वोट इस वक्त देगा जब उसको चेहरा भी तब्दीली का नजर आएगा। वफाकी वजीर असद उमर ने कहा कि फरवरी में वजीर आजम बड़े फैसले करने जा रहे हैं, महंगाई की कमर तोड़ने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मसनूई महंगाई करने वाले माफिया के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। फरवरी के महीने के अंदर अंदर आप इंशाअल्लाह ताला देखेंगे बड़े फैसले करने जा रहे हैं वजीर आजम, जिससे ये महंगाई जो बढ़ी है इसकी कमर तोड़ी जाएगी, महंगाई को नीचे लाया जाएगा। और उसके साथ साथ वो तमाम लोग जो इस मसनूई महंगाई के जिम्मेदार हैं, वजीर आजम ने फैसला कर लिया है, आप उन पर भी देखेंगे इंशाअल्लाह ताला फरवरी के महीने के अंदर अंदर उन लोगों के ऊपर भी फैसले किए जाएंगे। और जो इस मसनूई महंगाई का जिम्मेदार है उसको इसकी कड़ी सजा दी जाएगी। वज़ीर आज़म की मुआविन खुसूसी फिरदौस आशिक अवान का कहना है कि वज़ीर आज़म कौम से किए गए वादे पर 1 इंच भी पीछे नहीं हटे। वज़ीर आज़म ने कहा था कि चोरों को नहीं छोड़ूंगा। वज़ीर आज़म इमरान खान की मुआविन खुसूसी बराए इत्तलाआत व नशरियात फिरदौस आशिक अवान ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि मुल्क में 72 साल से स्टेटस को का मखसूस निज़ाम चल रहा था। माजी में ताकतवर ने कानून को अपने मफाद से जोड़ा था। एक मखसूस स्ट्रक्चर जो 72 साल से इस मुल्क में चल रहा था, वो स्टेटस को का वो गला सड़ा निज़ाम जिसको जानबूझ के लूला लंगड़ा रखा गया ताकि उस स्टेटस को के जो बेनिफिशरीज हैं वो उससे फ़ायदा उठाते रहे और उसमें ताकतवर जो है उसने कानून को अपनी मर्जी से मोम की तरह अपने मुफाद से जोड़ा हुआ है। फिरदौस आशिक अवान का कहना था कि नाजायज ज़राए से असासे बनाने वालों को जवाबदेह होना पड़ेगा। ज़ाती बयानिए से जुड़े अफराद अदालत से जमानतों पर बाहर आ रहे हैं। वज़ीर आज़म कौम से किए गए वादे पर 1 इंच भी पीछे नहीं हटे। वज़ीर आज़म ने कहा था चोरों को नहीं छोड़ूंगा। कि वज़ीर आज़म ने कहा था कि मैं चोरों को नहीं छोड़ूंगा, मैं इनको कैफरे किरदार तक पहुंचाऊंगा। तो ये अदालतों से इनकी जमानतें होती जा रही हैं और एक एक करके ये सारे नाम नेहाद अवाम के दर्द में निडाल ये जाती दर्द के साथ जुड़े बयानिए वाले अदालतों से बाहर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि माजी के गठजोड़ के खिलाफ इमरान खान की जिद्दोजहद आखिरी मराहिल में है। गले सड़े निज़ाम में इस्लाहात के लिए चैलेंजेस दरपेश हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान का अवाम के साथ दर्द और एहसास का रिश्ता है। मुआविन खुसूसी का कहना था कि मुफाहिमत और NRO की सियासत अवाम की नज़रों से ओझल नहीं हो रही। अवाम माजी के सिस्टम को बदलते देखना चाहते हैं। अवाम समझते हैं कि निज़ाम बदलने की इस्तादाद अगर कोई रखता है तो वो इमरान खान है। किस मुल्क के अंदर अगर कोई इस निज़ाम को बदलने की इस्तात और कमिटमेंट और जज्बा और जुनून रखता है तो वो एक ही शख्स है जिसका नाम इमरान खान है। उन्होंने कहा कि मुल्क में आटे और चीनी का बहरान पैदा करने की कोशिश की गई। चीनी के मसनूई बहरान पर एक नेटवर्क के गठजोड़ से वाकिफ हैं। आटे के मसनूई बहरान पर सूबाई हुकूमत को छापों के लिए मुतहर्रिक किया गया। माफिया जानता है कि इमरान खान की कामयाबी से उनकी सियासी दुकानें बंद हो जाएंगी। आपने देखा कि आटे का एक ऐसा बहरान पैदा करने की कोशिश की गई, इसी तरह अब चीनी के मसनूई बहरान की तरफ कुछ नेटवर्क ऐसे मुतहरक है कि जो मसनूई जो आपकी डिमांड सप्लाई का गैप है उसको पैदा करके क्राइसिस में उसको बदलना चाहते हैं। हमें अच्छी तरह से पता है कि वो गठजोड़ क्या है। जज़ा सज़ा का जो निज़ाम है इन सारे इदारों के अपने
पेशावर के BRT मंसूबे से मुतालिक मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ और वजीर दिफा परवेज खटक के दरमियान सोशल मीडिया पर लफ्जी जंग छिड़ गई। कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तलाफ शहबाज शरीफ और वजीर दिफा परवेज खटक के दरमियान ट्विटर पर लफ्जी जंग उस वक्त शुरू हुई जब शहबाज शरीफ ने ट्वीट में कहा कि पेशावर BRT की लागत लाहौर, मुल्तान और इस्लामाबाद मेट्रो की मुश्तरका लागत के बराबर है। 27 किलोमीटर तवील लाहौर मेट्रो मंसूबे पर कुल लागत 29 अरब 65 करोड़ रुपए आई, जबकि 27.6 किलोमीटर तवील पेशावर BRT की लागत 90 अरब रुपए है। साबिक वजीर आला पंजाब ने कहा कि मुस्लिम लीग नून की जानिब से बनाए गए तीनों मेट्रो मंसूबे अपने वक्त पर मुकम्मल हुए, जबकि पेशावर BRT अब तक नामुकम्मल है। हमारे मंसूबों पर करप्शन के इल्जामात लगे और उन्हें जंग लाबस कहा गया। दूसरी जानिब ये भी कोई ताज्जुब खेज नहीं कि PTI ने अपने मंसूबे में करप्शन की तहकीकात रुकवाने के लिए हुक्म इम्तिनाई ले रखा है। शहबाज शरीफ के ट्वीट पर परवेज खटक भी मैदान में आ गए। उन्होंने कहा कि BRT की तामीराती लागत 66 अरब रुपए है, जो लाहौर मंसूबे से अब भी कम है। BRT मंसूबे का मरकजी कॉरिडोर और मुत्तसिल रूट मुकम्मल हो चुके हैं। यहाँ लगने वाला इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का निज़ाम अनकरीब मुकम्मल होने वाला है। वाज़ेह है कि पेशावर BRT मंसूबे को PTI की गुज़िश्ता खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने शुरू किया था। उस वक्त वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा परवेज खटक थे। फिलिपाइन के 3 जज़ायर की मलका सुल्ताना मारिया का कहना है कि पाकिस्तान और फिलिपाइन के दरमियान सयाहती समाजी ताल्लुकात को बेहतर बनाने की ज़रूरत है। मेरी कोशिश है कि फिलिपाइन के लोगों को पाकिस्तान भेजूं। फिलिपाइन के 3 जज़ायर की मलका सुल्तानिया मारिया कराची के दौरे पर हैं। इस दौरान वो कराची प्रेस क्लब पहुंची। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उनका कहना था कि पाकिस्तान बहुत खूबसूरत मुल्क है, यहाँ के लोग आम नहीं मेहनती हैं। मैं पहली मरतबा पाकिस्तान आई हूँ, यहाँ आकर बड़ी खुशी हुई। पाकिस्तान के लोग मेहमान नवाज और बहुत खुश मिजाज हैं। उन्होंने बताया कि मेयर से मुलाकात की और मुख्तलिफ उमूर पर बातचीत हुई, जबकि रेहान हाशमी से भी मुलाकात की और सयाहत के हवाले से गुफ्तगू हुई। The mayor of Karachi, what projects we can do here in your city. So it was a wonderful meeting and I thank him for his hospitality. Also, I'm very thankful to the chairman of DMC, Chairman Rehan Hashmi. One, for definitely being part of the team, also for welcoming me, such a nice gesture. Yesterday he did a huge event and it was I was totally blown away by the kind of gesture, the hospitality, all those wonderful people waving the flags of Philippines and Pakistan, and the children and wonderful talented people who just gave their time and energy just to welcome me. मलका का कहना था कि पाकिस्तान और फिलिपाइन के दरमियान सयाहती व समाजी ताल्लुकात को बेहतर बनाने की ज़रूरत है। मेरी कोशिश है कि फिलिपाइन के लोगों को पाकिस्तान भेजूं। पाकिस्तान सयाहत के लिए बेहतरीन मुल्क है। तालीम और ख़वातीन के हवाले से काम कर रहे हैं। मैंने यहाँ गरीब बच्चों के लिए काम का आगाज़ किया है। I was totally blown away by the kind of gesture, the hospitality, all those wonderful people waving the flags of Philippines and Pakistan, and the children and wonderful talented people who just gave their time and energy just to welcome me. So it was really beautiful. Welcoming me, of course, it's welcoming my country as well. उनका मज़ीद कहना था कि कश्मीर के लिए आवाज़ उठाने की ज़रूरत है, मसले को पुरअमन तरीके से सुलझाया जाए। Use my voice for the people of Kashmir. I mean, of course, although I will use the platform of We Care for Humanity to do that, we have many platforms how we can raise our voices without violence, without war. And this is our goal, to help humanity in the most peaceful possible way in the country, whether it's private or public. कराची में घरेलू दस्तकारी और हुनरमंदी को फ़रोग देने के लिए हुनरमंद कराची फेस्टिवल का इनेकाद किया गया, जिसमें शरीक हुनरमंदों ने अपने फ़न का मुजाहिरा करते हुए मुख्तलिफ अशिया तैयार की, जिनमें मिट्टी के बर्तन, नायाब पत्थरों से बनी दस्तकारियाँ, रिली, कुदरती रंगों की रंगाई,
ब्लॉक प्रिंट्स, लकड़ी का कम झंडी, हाथों से बनी ज्वेलरी समेत मुख्तलिफ दस्तकारियाँ शामिल हैं जो शहरियों की तवज्जो का मरकज बनी रही। हुनरमंद मेले का मकसद मकामी हुनरमंदों की हौसला अफजाई और उन्हें नए मौके फराहम करना है। हुनरमंद फेस्टिवल में खाने पीने समेत हाथों से बनाई गई अशिया और मुख्तलिफ मलबूसात के स्टॉल्स भी लगाए गए, जबकि हुनरमंदों के हुनर को सराहने के लिए शहरियों की बड़ी तादाद ने मेले में शिरकत की। नुमाइश का मकसद हुनरमंद अफराद को ऐसे मौके फराहम करना था कि वो हाथ से बनी अशिया के लिए मार्केट की तवज्जो हासिल कर सकें। हुनरमंद मेले के शुरका का कहना था कि इस तरह की नुमाइश का इनेकाद होते रहना चाहिए, क्योंकि जो लोग बाहर से कीमती अशिया की खरीदारी करते हैं उन्हें मालूम हो कि मकामी सतह पर यहाँ कितनी खूबसूरत चीज़ें बनाई जाती हैं। फेस्टिवल में शरीक एक नौजवान सैयद काशिफ का कहना था कि मुझे बसों के मॉडल बनाने में महारत है, जबकि हुकूमती मदद से बैनुल-अक़वामी सतह पर अपने फ़न के ज़रिए मुल्क का नाम रोशन करना चाहता हूँ। मैं अभी रिसेंटली मेरा यही प्रोग्राम है कि मैं नया मॉडल मुतारिफ़ करवाऊँ, लेकिन मैं नया मॉडल मुतारिफ़ करवा तो दूँ, मैं ये चाह रहा हूँ कि कोई बैक पे गवर्नमेंट मुझे सपोर्ट करे, तो फिर उसके हिसाब से मैं इंशाल्लाह एक नया मॉडल मुतारिफ़ करवाऊँगा।